Today we will have a problem, word problem on fundamentals. Number one, PQR are partners, their capital account PQR are the partners in a firm. Their capital account stood at 30,000, 15,000, and 15,000. 30,000, 15,000, and 15,000. Respectively on 1st January 2010. On 1st January 2010. As per the deed, first point, R was to be allowed a remuneration. R was to be allowed a remuneration of 3,000 per annum. 3,000 per annum. Number two, interest at the rate of 5% per annum. Interest at the rate of 5% per annum was to be provided on capital. These are the most probable questions which can be asked in the board. 5%. Number third, profits were to be divided in the ratio 2 to 1. Profits were to be divided in the ratio 2 to 1. Next line, ignoring the above terms, the net profit of rupees 18,000, 18, net profit of rupees 18,000 was divided among the partners equally. Was divided among the partner equally. Give per month per annum. Pass the adjustment entry. एक हो गया. नंबर 2, दो ही करेंगे बस. ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप अब दिया है. सिंपल इन द सेंस this gives the whole idea of what is to be done. Number 2, Asha and Boni are partners, equal partners. Asha and Boni are equal partners. Their capitals on 31st December 2000. Capital on 31st December 2000. 60,000 and 50,000 respectively. 50. After taking into account the profit, of the year 2000, which amounted to rupees 20,000, it was found that following items have been left out. It was found that
following items were left out while preparing the final accounts? Number one, partners were entitled to interest on capital. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. At the rate of 6% per annum, partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. Number two, drawings of Asha and Boni. Drawings of Asha and Boni for the year were 8,000 and 6,000 respectively. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको पता है बहुत सारे केसेस हैं and 6,000 respectively. Interest on drawing was charged at the rate of 5% per annum. Interest on drawing at the rate of 5% per annum. Number third, Asa was entitled to a salary of 5,000 per annum. Asha was entitled to a salary of 5% per annum. 5,000 per annum. And Boni, a commission of 2,000 for the whole year. And Boni, a commission of 2,000 for the whole year. Make the necessary adjustment entry to record the above omissions. हाँ क्या करना है So first one, PQR are partners in a firm. अरसलान सीधे बैठ दो उसको क्या बता रहे let them do themselves so that they are able to help themselves don't push them into the ditch. So number one, Medhavi, you know ये वाला so please pay attention. Adjustment table, how many are there? 2, 3. चलिए कैसे पता लगता है अरे पार्टनर PQR
क्वेश्चन में स्टेप है इसमें। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है व्हाट was to be done, what was to be done and not done, do it. What was to be done and was omitted, please do it first. तो उन्होंने कहा कि ये कुछ प्रोविजंस थे जो उन्होंने छोड़ दिए थे। जैसे आर को सैलरी देनी थी 3,000, इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे 5%, प्रॉफिट डिवाइड करना था 2 to 1 में, राइट। तो प्रीवियस डे आई टोल्ड यू कि आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं टू कैलकुलेट क्या क्या चीजें नहीं दी गई। मान लो अगर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती तो हम ये चीजें देते उन्हें और बचा हुआ प्रॉफिट बांटते 2 to 1 में। तो लेट अस डू इन द टेबल फॉर्म। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है। उधर से बैठो। सबसे पहले क्या लिख दिया है, सैलरी टू आर, कितनी 3,000 पर एनम, टोटल 3,000। क्या होगी ये, यहां पर लिखते भी जाओ, इट इज टू बी क्रेडिटेड। ये हमने देनी थी आर को जो कि नहीं दी, अब दे रहे हैं। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, 30,000 15,000 15,000 इंटरेस्ट। Interest on capital. Interest on capital is also credited to partners capital account. So how much? 5%. 1,500. 1,500. 750. टोटल हो गया आपका 3,000 अगेन, ठीक, टोटल हो गया 3,000। फिर आपने देना था प्रॉफिट्स, कौन से रेशियो में, 2 to 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कौन सा, टोटल प्रॉफिट था कितना, 18,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 6,000। is equal to in the ratio 2 to 1। वो भी तीनों पार्टनर को बांट देंगे। बचा हुआ प्रॉफिट, डोंट डिस्ट्रीब्यूट 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन व्हेन यू मेक, तो आप प्रॉफिट लिखते इधर 18,000, फिर उधर सैलरी इंटरेस्ट कमीशन ये सब देते और टोटल प्रॉफिट में से इधर से उनका टोटल माइनस करते, फिर जो प्रॉफिट बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमने इसलिए यहाँ पर टोटल निकाल के रखते हैं, पहले से पता रहे कि कितना माइनस करना है। 18 माइनस 6 बचा आपका 12,000। 2 to 1 में 2 to 1 मींस 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 to 10 एंड 5 4 से 20, 2400 आएगा। 24 into 2 48 एंड 24 ना, हाँ 24। नेवर फॉरगेट द स्टेप्स। ये वो चीजें कर रहे हैं हम जो करना भूल गए थे या ऑमिट कर दी थी और फाइनल अकाउंट बना लिए थे। अब पता चली ये मिस्टेक्स हमें आफ्टर मेकिंग द फाइनल अकाउंट, दैट इज व्हाई इट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सही करना और सारी गलतियों के लिए जर्नल एंट्री ना करके सारी गलतियों को रेक्टिफाई करके एक एंट्री करना बस। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैंने आपको उसको क्या बताया था, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एंड ऑल द एरर्स जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं उनको कैंसिल करिए और फाइनल आंसर निकालिए। तो ए को मिलने चाहिए टोटल, पी को 0 0 6,300, 5,550। ये इसका टोटल
ठीक हो गया? टोटल हो गई 18,000। अगर कोई गलती नहीं की होती हमने तो तीनों पार्टनर को इतने इतने पैसे मिलते। ठीक हो गया? अब इतने पैसे आप देंगे उन्हें क्योंकि गलती आपने सही करनी है। पहले पैसे ये सब नहीं दिए थे उन्हें। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव कैलकुलेटेड दैट वी हैव टू गिव टू पी मिस्टर पी 6,300, टू क्यू 5,550 एंड आर 6,150। तो जब ये पैसे देंगे अब तो पहले जो उनको बांट दिए थे वो वापस ले लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है पहले 18,000 रुपीज उनको बराबर बराबर बांट दिए थे, वो 18,000 वापस ले लीजिए। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, लास्ट वाली लाइन पढ़ो, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, नाउ डेबिटेड। नाउ आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट का मतलब क्या हुआ, वी आर टेकिंग इट बैक। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ नॉलेज? क्वेश्चन के इस पे अमाउंट पे और उस पे मत जाओ कहानी में। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं क्वेश्चन में। एक काम किया ये ऊपर जो जो देना था जो जो लेना था उनसे वो सब, इसका मतलब है कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहते हैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इधर लिखेंगे 18,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, उधर लिखेंगे टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबीसी। ठीक, लेकिन वहां अलग अलग अमाउंट आएगा, आपको पता नहीं चलेगा ए को कितना देना है, बी को कितना, सी को कितना। इस टेबल को बनाने से आपको सेपरेटली पता चल रहा है ए बी सी को कितना कितना देना है, पी क्यू आर को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको फिर अलग अलग काउंट करने को मिलेगा, सैलरी को प्लस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, ये प्लस, प्रॉफिट प्लस, तब आएगा पी का, क्यू का और आर का। अब पता चल गया अगर कोई गलती नहीं करते तो हम इतने इतने पैसे देते, तो आप देने को तैयार है। बट जो पहले गलती से बांट दिए थे वो वापस ले लीजिए, बराबर हो जाएगी बात। इससे 6,000 300 क्रेडिट, 550 डेबिट, 150 ओके, यू आर गोइंग राइट। ठीक हो गया? हमेशा लास्ट में जब आंसर आएगा डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल। इक्वल हो गया ना? पी और आर क्रेडिट और डी और बी डेबिट। सो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 टू पीस कैपिटल अकाउंट 300 टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जो 4 मार्क्स है ना एग्जाम में वो इस जनरल एंट्री के उसके लिए। ओके, हाँ वेट वेट। तो ये 4 नंबर की जो क्वेश्चन है, नंबर बेटा इस जनरल एंट्री के हैं। ये सब आपका जो है वर्किंग नोट कह लो, रफ कह लो, रफ तो कुछ भी नहीं होता, वर्किंग नोट है। ये जो मेथड है ये आउट ऑफ 50 मेथड्स एक मेथड है ये निकालने का, राइट? तो किसी और बुक में या कोई और टीचर आपको कोई दूसरा मेथड बता सकते हैं, लास्ट में ये निकलना चाहिए, बस लास्ट में ये आना चाहिए। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेथड से अलग बता दिया, एक डबल कॉलम मेथड होता है, डेबिट क्रेडिट हर एक का लिखते हैं। एक ये मेथड है टेबल ऑफ एडजस्टमेंट का। सो दिस यू हैव टू सी दैट व्हिच मेथड इज सुटेबल फॉर यू, किससे आपको समझ में आ रहा है। अगर ये सही आ रहा है आपको समझ में, सबसे इजी है ये, इजीएस्ट है ये। क्या क्या देना है क्या क्या लेना है वो करके, टोटल प्रॉफिट में से व्हाटएवर इज टू बी गिवन, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के वो भी क्रेडिट करके
सारे क्रेडिट आइटम ऊपर आ गए, ये अमाउंट क्रेडिटेड है टू बी क्रेडिटेड, और ये अमाउंट है टू बी डेबिटेड बिकॉज इट वाज wrongly credited to them, now it is debited. स्टेप लेकिन कितने इसमें, दो ही। एक ऊपर वाला स्टेप इन विच वी आर गिविंग द omitted थिंग्स, एक नीचे वाला, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, इसी में गड़बड़ करते बच्चे लास्ट में आके, कई तो इसको लेना भूल जाते वापस, कई इसको गलत रेशियो में ले लेते हैं। गलत रेशियो में लेंगे इसे, मान लो आपने इसे फिर से 2:1 में ले लिया, जबकि क्वेश्चन में था कि इक्वली बांट दिया था। अगर नहीं बताया होता, अगर नहीं बताया होता कि उसे इक्वली बांटा था, तो फिर हम मान लेते कि वो 2:1 में बांटा होगा पहले। ये तो क्वेश्चन में लिखा था ना, दैट द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अर्लियर। अगर नहीं लिखा होता तो हम मानते कि प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 रेशियो। क्लियर हो गया? तो फिर यहां पर ये 2:1 में करते हैं, आंसर तब भी सही आता है, ठीक है नहीं, अगर क्वेश्चन में बाकी चीजें सही होंगी। चलो आफ्टरवर्ड्स, सो गो टू द क्लास 12 C फॉर सम सेमिनार। थैंक यू and revise the questions. चलो